مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں، آج میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اور متی کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت، 15واں باب اس کی 17ویں سے 22ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں۔ پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے پاس کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا، آئے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں۔ پس ہمیں بتا، تو کیا سمجھتا ہے، کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اتوار کو وہ یروشلم گیا اور مسیح کے طور پر اس کا استقبال کیا گیا۔ سوموار کو اس نے صرافوں اور بیچنے والوں سے ہیکل کو صاف کیا، اور اب منگل ہے، آنے والے جمعے کو اس کو مصلوب کیا جائے گا اور اتوار کو وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ لکھا ہے، پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس کے پاس بھیجا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فریسیوں نے اپنے شاگردوں کو کیوں بھیجا؟ وہ خود کیوں نہیں گئے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ وہ بہت پہلے ہی ریاکار ثابت ہو چکے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ ایسا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ یسوع کے پاس جا کر یہ دکھا سکیں کہ وہ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور ایمانداری سے سوال پوچھتے ہیں۔ سو انہوں نے خود جانے کی بجائے اپنے شاگرد بھیجے۔ میرے عزیزوں، وہ ایک طرح سے بھیس بدل کر یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم یسوع کی طرف ہیں اور ایمانداری سے سوال پوچھنے آئے ہیں، جس طرح کہ وہ بہت سچے مذہبی لوگ ہیں جن کو جوابات کی تلاش ہے، اور اصل میں وہ اس سے یہ چاہتے تھے کہ وہ روم کے خلاف ایک بیان دے اور یسوع جیسی طاقت اور اس جیسے اثر و رسوخ کے حامل ایک شخص کا روم مخالف بیان دینا واقعتاً رومی نظام کے لیے ایک خطرہ ہوتا، اور وہ بھاگ کر رومیوں کو اس کی اطلاع کرتے اور رومی اس کو مار دیتے، اور اس طرح سے ان کا مطلب حل ہو جاتا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیرودی کون ہے؟ ہیرودی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جیسے مسیح کے تھے، اسی طرح ہیرودیس کے پیروکار تھے۔ یہ ان کی مذہبی نہیں بلکہ سیاسی شناخت تھی۔ وہ ہیرودیس کی سیاسی جماعت کے تھے۔ میرے عزیزو، آپ کہتے ہوں گے، انہوں نے ہیرودیوں کو اپنے ساتھ کیوں لیا؟ انہوں نے ہیرودیوں کو یہ سوچ کر ساتھ لیا کہ جب یسوع اپنی روم مخالف باتیں کہے تو ان کے ساتھ روم نواز گواہ ہوں، جن کی رومن گورنر اور اس کے لوگوں تک رسائی ہو، اور وہ لوگ ان کے پاس جا کر یسوع کے خلاف گواہی دے سکیں اور ان کی بات قبول کی جا سکے، کیونکہ وہ رومی حکومت کے حامی ہے کہ یہ شخص فسادی ہے، یہ شخص روم مخالف بغاوت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر فریسی جا کر رومی حکومت سے یہ بات کہیں گے تو یہ رومیوں کو مضحکہ خیز لگے گی اور ان کو لگے گا کہ یہ کوئی چال ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ فریسی روم کو بغاوت کے بارے میں بتانے نہیں آئیں گے، سو ان کے ساتھ ہیرودیوں کا ہونا ضروری تھا۔ ہیرودی بھی یسوع کو پسند نہیں کرتے تھے، لہذا انہوں نے فریسیوں کے ساتھ تعاون کیا۔ وہ آ کر کہتے ہیں، پس ہمیں بتا، تو کیا سمجھتا ہے، کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ میرے عزیزو، اب لفظ جزیہ پر غور کریں، کیونکہ یہی کلید ہے۔ یہ لفظ
लातीनी लफ्ज सेंसस से लिया गया है, जिससे लफ्ज मर्दम शुमारी निकला है, यानी हर फर्द की गिनती। क्या हमें मर्दम शुमारी टैक्स देना चाहिए? अब इससे मुराद एक मखसूस टैक्स है। रोमी तमाम लोगों को गिनते थे और गिनती के हिसाब से हर शख्स से टैक्स लेते थे। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं, उन्होंने हर एक फर्द के साथ एक इनफरादी टैक्स मुंसलिक किया हुआ था। हर साल हर फर्द को टैक्स की तरह ये मर्दमशुमारी टैक्स अदा करना पड़ता था। ये किसी भी फर्द पर जाती टैक्स था। अगर खुदा यीशु मसीह ये कहे कि टैक्स अदा करो, तो यहूदी लोग और कौम उससे खफा हो जाएंगे और उसे यहूदी मुखालिफ के तौर पर देखा जाएगा, और उनका ख्याल है कि हो ही नहीं सकता कि वो मुमकिना तौर पर कहे टैक्स अदा करो, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर यहूदी ये जानते हैं कि ये खुदा के नज़दीक गुनाह है, तो वो भी ये ज़रूर जानता होगा। सो उन्हें यकीन है कि वो सिर्फ यही जवाब दे सकता है कि टैक्स ना दो, ये खुदा के नज़दीक गुनाह है। हम खुदा की कौम हैं, सो गैर कौम रोम को ये टैक्स ना दो। वो यही उम्मीद कर रहे हैं, और जैसे ही वो ये कहे और लोगों के चिल्लाने की आवाज बुलंद हो और ऐसा लगे कि अब वो एक बागी के तौर पर उसको पेश कर सकते हैं, तो हेरोदी जाएं और रोम को उसकी इतला करें, और फिर फसाद हो और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। सो ये सवाल एक बहुत अहम सवाल है, एक बहुत ही अहम सवाल है। मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 18वीं से 22वीं आयत में लिखा है, यस्सु ने उनकी शरारत जानकर कहा, आए रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? जजिए का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। अजीज भाई और बहनों, लेकिन यस्सु उनकी शरारत जानता है, क्योंकि वो सब जानता है। यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब और 25वीं आयत में लिखा है, और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। वो सवालों के पूछे जाने से पहले ही जानता था, और जब वो पूछे जाते थे तो वो उनके मकसद को भी जानता था। और वो कहता है, आए रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? वो ठीक कहते थे, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी बात कहता था। वो किसी से भी नहीं डरता था। उसने उनको सच्चे लक़ब से पुकारा। उसने उनको वही पुकारा जो वो थे, यानी रियाकार और धोखेबाज। सो वो उनसे कहता है, तुम मुझे क्यों आजमाते हो और क्यों मेरा इम्तिहान लेते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा? सो यीशु ने कहा, लाओ, मुझे जजिए का एक सिक्का दिखाओ। और वो 1 दिनार उसके पास लाए। यही 1 दिनार था जो उनको बताओ टैक्स देना होता था। उस वक्त बहुत सारी इकसाम के यूनानी सिक्के थे, बहुत सारी इकसाम के रोमन सिक्के थे, जिनमें कुछ तांबे के, कुछ चांदी के और कुछ सोने के सिक्के थे, और फिर इब्रानी मस्कालें भी थीं। लेकिन टैक्स 1 दिनार था, जो रोमन सिक्कों के हिसाब से देना होता था। तो यीशु ने कहा, मुझे एक जजिए का सिक्का दिखाओ। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि उन्होंने जल्दी की, क्योंकि वो चाल चल रहे थे। उनका ख्याल था कि वो उनकी बातों में आ गया है। ये रहा सिक्का, और वो सिक्का उसके पास लाए। मेरे अजीजों, वो एक माहिर उस्ताद की तरह उसे एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करता है।
वो अपने हाथों में सिक्के को लेता है। ये एक चांदी का सिक्का था जो शहंशाह के हुक्म पर बना था। सिर्फ शहंशाह ही चांदी और सोने के सिक्के बना सकता था। रोमन सेनेट सिर्फ तांबे के सिक्के बना सकती थी। कोई भी चांदी का सिक्का हो, उस पर कैसर की तस्वीर होती थी। इस पर सिर्फ तस्वीर ही नहीं, इसके साथ साथ बादशाह के बारे में कुछ लिखा भी होता था। ये बादशाहों के दरमियान एक आम रिवाज था। और हर दफा कोई भी यहूदी जब अपनी थैली से दिनार निकालता तो ये उसको ठेस पहुंचाता था। 2 वजूहात की वजह से उसको ठेस पहुंचती थी। पहली वजह यह थी, ये उसको रोम के जुल्म की याद दिलाता था, और ये कि वो एक गैर कौम के कब्जे में है। मेरे जीजो, दूसरी वजह ये थी कि ये एक शबी थी और वो बहुत अच्छे से जानते थे कि पुराने अहदनामे में खोदी हुई शबी को मना किया गया था। मेरे जीजो, वो कहता है कि ये सूरत और नाम किसका है। आयत नंबर 21 में ये लिखा है, उन्होंने कहा कैसर का। उन्होंने जल्दी से इस आसान सवाल का जवाब दिया, और ये सच था, इन सिक्कों पर कैसर की शबी थी। अगस्तुस या तिब्रियास, दोनों में से किसी के अहद की ये हमें नहीं पता। शहंशाह की इबादत रोमन सल्तनत का एक हिस्सा थी। जब भी एक यहूदी हाथ में इस शबी वाले सिक्के को लेता था तो ये इस बात को जाहिर करता था कि उसके हाथ में एक छोटा बुत है, एक गैर माबूद का, एक झूठा बुत है, एक गैर माबूद का झूठा बुत। और आप सोच सकते हैं कि इन सिक्कों को वो कितनी नफरत से देखते होंगे। सुनिए, यीशु ने क्या कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। अजीज भाई और बहनों, आज कल हम भी खुदावंद को देने और दुनिया को देने में गड़बड़ कर जाते हैं। जो वक्त खुदा का है वो खुदा को देना जरूर है। आजकल के इन नामसाद हालात में इस बात को जानिए कि हमें खुदावंद खुदा के पास आना जरूर है। हमें अपनी मसरूफ जिंदगी में से खुदा के लिए वक्त निकालना जरूर है, ताकि हम मौजूदा हालात में, मौजूदा ज़माने में पाए जाने वाली अबतरी, तमाम बुरे हालात और हर किस्म की वबा पर से छुटकारा पा सकें। जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं और खुदावन से दुआ मांगते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको अव्वलीन मकाम देते हैं, तो खुदा हमें तमाम मुसीबतों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, मसाइल से, मुश्किलात से, परेशानियों से, फिक्रमंदियों से रहाई दिला सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि जो खुदा का वक्त है वो खुदा को देना ज़रूर है। और मेरी आज दुआ है कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, खुदा आप सब सुनने वालों को अपनी ज़िंदगी में ये फजल बख्शे कि आप इन 24 घंटों में खुदा का वक्त खुदा को देने की बरकत पाएं। आमीन।